Canals in India. India is largely an agricultural country, and irrigation plays a crucial role in sustaining its agricultural economy due to high temperature and uneven rainfall distribution. Irrigation is essential to supplement and natural precipitation, particularly in regions with high evaporation rates. India falls under subtropical climate zone, characterized by high temperature and variable rainfall patterns. Regions like Western Himalaya, Northeastern states, Assam, Meghalaya, and part of South India receive higher rainfall and thus have less dependence on artificial irrigation system. However, most of the country experience high evaporation and erratic monsoon pattern, necessitating a well-structured irrigation system. Sources of irrigation: according to the government record 2018 to 19, primary source of irrigation in India is tube wells and wells. Tube-well irrigation counted 48.51% of टोटल इरीगेटेड एरिया, मतलब ट्यूबवेल कितना इरीगेट करता है तो 48.51%. कंबाइंड ट्यूबवेल्स एंड वेल इरीगेट 63.94%. ट्यूबवेल और वेल मिल के लगभग 64% करते हैं. दिस मेक ग्राउंड वाटर द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन. कैनाल्स कितना करते हैं? 22.96% of total irrigated area inland in India was served by canal irrigation. 22.96%. Canal irrigation is mostly found in states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, and West Bengal, where large river basins allow construction of canals. Tanks and other sources: 2.33% of total irrigated area dependent on tanks. Tanks are commonly used in peninsular India, especially in Tamil Nadu, Andhra, and Karnataka. The remaining area is irrigated through other minor sources like lakes, ponds, and check dams. तो लगभग 48% ट्यूबवेल से होता है, और वेल में मान लीजिए वही घटा दिया जाए तो उतना, बाकी 63 में तो लगभग 15% वेल से होता है, 22.96% कैनाल से होता है, 2.33% टैंक्स से होता है. इरीगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड अंडर इरीगेशन. एरिया जितना कवर होता है इरीगेशन को उसके अनुसार होता है. माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स लेस देन 2000 हेक्टेयर. 2000 हेक्टेयर से कम है तो वो किस में आएगा? माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट में आएगा. दीज आर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट यूज्ड प्राइमरली फॉर लोकल एंड इंडिविजुअल फार्मिंग नीड्स. दे फुलफिल अबाउट 62% ऑफ टोटल इरीगेशन डिमांड इन इंडिया. जो माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 62% है. जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स, ponds, pump set, drip irrigation, and sprinkler irrigation. Drip irrigation and sprinkler irrigation are widely promoted to conserve water, especially in water-scarce states like Rajasthan and Maharashtra. Medium irrigation project 2000 से 10,000. Medium-sized project typically involve small dam-based canals and check dams that store water seasonally. These projects are often seen in Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha, and Chhattisgarh. They help in areas with moderate rainfall but are not as extensive as major irrigation project. Major irrigation project देखा जाए ये जो मीडियम है वो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक. मेजर इरीगेशन more than 10,000 hectares तक. The project cover vast areas and are built to ensure long-term water availability. They provide 38% of total irrigation needs in India. 62% लगभग माइनर, फिर मेजर 38% अब टोटल नीड्स इन इंडिया. जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट सतलज पे जो बना है
पंजाब हरियाणा और राजस्थान को फायदा देता है। इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र को फायदा देता है। ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। हीराकुद डैम महानदी पे बना है, उड़ीसा। नागार्जुन सागर ने प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को फायदा देता है। फेमस कैनाल्स इन इंडिया। गंग कैनाल 1927 में महाराजा गंग ने बनवाया था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड कैनाल्स इन द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्टेड इन 1927 बाय श्री गंग सिंह द महाराजा बीकानेर, ओरिजिनेट फ्रॉम हुसैनी वाला नियर सतलज रिवर इन फिरोजपुर, पंजाब। ईस्टर्न यमुना कैनाल रिवाइव्ड इन 1830 AD। ये कहाँ से? ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर एट ताजेवाला। ईस्टर्न यमुना कैनाल प्रोवाइड इरिगेशन इन हिंडन यमुना दोआब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ एंड गाजियाबाद। ईस्टर्न गाजियाबाद। द इनिशियली डिस्चार्ज कैपेसिटी was 800 causecs, later increased to 4000 causecs. हाथी कुंड बैराज हरियाणा में was built 3 किलोमीटर above ताजेवाला to regulate water flow। अच्छा, मतलब यहीं से ताजेवाला से ही निकलता है ईस्टर्न यमुना कैनाल। ठीक। अपर गंगा कैनाल स्टार्टेड इन 1842 AD। एक गंगा कैनाल था, फिर ईस्टर्न यमुना कैनाल 1830। गंगा कैनाल तो 1927 में बना। हाँ। अपर गंगा कैनाल कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1842 AD बाय सर P.T. कैटले। द फर्स्ट वाटर डिस्चार्ज occurred in अप्रैल 8, 1854। ओरिजिन भीमकोड़ा, हरिद्वार, राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा। मेन कैनाल 298 किलोमीटर। टोटल कैनाल सिस्टम 6496 किलोमीटर का पूरा सिस्टम है। सप्लाइज इरिगेशन टू हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा। Initially it was also used for waterways, provided 200 causecs of water to Delhi and 100 causecs water to Harduaganj thermal power plant। शारदा मेजर कैनाल अपर गंगा कैनाल हरिद्वार से भीमगोड़ा से निकलता है, राइट बैंक। ईस्टर्न ताजेवाला से निकलता है। हाथी कुंड बैराज। शारदा मेजर कैनाल कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोटेक्टिव इरिगेशन, originate on the right bank of Sarda river near Banbasa, Nainital, Uttarakhand। Provide irrigation to districts like पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज। मेन कैनाल लगभग 44.3 किलोमीटर है, लेकिन टोटल लेंथ 9961.3 किलोमीटर है। लोअर गंगा कैनाल 1878 स्टार्टेड फ्रॉम नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, बिल्ड टू एक्सपेंड इरिगेशन फैसिलिटीज टू वेस्टर्न यूपी। इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्टेड इन 1958। फाउंडेशन स्टोन was laid by गोविंद बल्लभ पंत, then Home Minister, in March 1958। Source हरिके डैम। Confluence of सतलज एंड ब्यास रिवर इन पंजाब। कहाँ? मतलब जहाँ सतलज और ब्यास रिवर मिलती हैं पंजाब में, वहाँ से हरिके डैम से। टोटल लेंथ 649 किलोमीटर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट। प्राइमरी इरिगेशन एरियाज वेस्टर्न राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। Convert Thar desert into cultivable land, promoting greenery and agriculture। गंडक प्रोजेक्ट बैराज नियर त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट से बैराज 740 किलोमीटर, मतलब बैराज लेंथ 740 मीटर्स। बिल्ट टू रेगुलेट गंडक रिवर फ्लो। सर्व इरिगेशन नीड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। गंडक नियर त्रिवेणी। फरक्का बैराज कंस्ट्रक्टेड इन 1975
purpose to prevent the accumulation of silt in the Hooghly River and regulate water flow. Water flow 40,000 cosec of Ganga water is diverted towards Hooghly by the right bank canal. ठीक. Strategic importance: control silt deposition, ensuring smooth navigation to Kolkata port. Major India-Bangladesh water sharing issue: Ganga Water Treaty 1996. Mangalam irrigation project Kerala, built on Bharatpuzha River and its tributary in Palakkad district. Built in Bharatpuzha River and its tributary in Palakkad district. Mangalam irrigation project Kerala, built on the Bharatpuzha River and its tributary in Palakkad, supplies irrigation to Kerala's rice bowl and adds drinking water supply. Garland Canal System, proposed by Captain Dinsa J. Dastoor, aims to connect multiple rivers through artificial canals. River linking idea, originally proposed by Sir M. Visvesvaraya, later supported by K. Rao, forms the basis of India's river interlinking project ILR project, which include केन बेतवा दमगंगा पिंजाल लिंक्स. केन को, बेतवा को, दमगंगा और पिंजाल लिंक्स. ठीक. वाटर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव हरियाली प्रोजेक्ट लॉन्च्ड ऑन January 27, 2003, introduced by Atal Bihari Vajpayee, increases water shortage and conservation in rural areas, promote community participation in watershed management. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY in 2015, हर खेत को पानी, वाटर फॉर एवरी फार्म, reduces dependence on monsoon irrigation. Accelerated Irrigation Benefit Program AIBP, funding for large scale project. Watershed development, sustainable water management, per drop per crop, promotion of drip and sprinkler irrigation. Integrated Watershed Management Program IWMP, merged in 2008, consolidated three major programs. Integrated Wasteland Development Program, Drought Prone Areas Program, Desert Development Program, focuses on rainwater harvesting, soil conservation and afforestation. Irrigation to Peninsular India, dominance of pond irrigation, region rocky terrain. ठीक. मेकिंग कैनाल एंड वेल कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट है यहाँ. सीजनल रिवर्स, लिमिटिंग कैनाल इरिगेशन. मेजर पॉन्ड इरिगेटेड स्टेट्स, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 40.72 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, पंजाब 26.69 बिलियन क्यूबिक मीटर, मध्य प्रदेश 17.39 मिलियन क्यूबिक मीटर, महाराष्ट्र 15.29 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. ठीक. स्टेट वाइज अगर इरिगेशन ट्रेंड देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से 74%, कैनाल से 15%, वेल से 9% मान लीजिए, टैंक से 0.6, अदर मीन से 0.8. मतलब सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से होता है, फिर कैनाल से, फिर वेल्स से. भारत में भी लगभग यही है. ट्यूबवेल से लगभग 62%, वेल्स से लगभग 14.5 और इस कैनाल से लगभग 22% से अधिक. टाइप्स ऑफ, अच्छा, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इरिगेशन देखा जाए. टाइप्स ऑफ इरिगेशन: सरफेस इरिगेशन, वाटर इज सप्लाइड थ्रू कैनाल्स, टैंक्स एंड रिवर डाइवर्जन्स. ग्राउंड वाटर इरिगेशन involves wells, tube wells and bore wells. Drip irrigation, direct water to plant roots, save 30 to 70% water. Drip irrigation. Sprinkler irrigation, sprays water over crops, best for dry region. Sprinkler irrigation. River interlinking project, National Prospective Plan 1980 में. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम फ्लड प्रोन एरियाज टू वाटर स्केयर रीजन्स, जैसे केन बेतवा लिंक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी साउथर्न रिवर लिंक्स, ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक ईस्टर्न रीजन के लिए,
ये लगभग 5.6 लाख करोड़ का वो आता है, मतलब इन्वायरमेंट कंसर्न, डिस्प्लेसमेंट, इकोसिस्टम इम्पैक्ट, इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट होता है। ठीक, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है। अब PYQs पे चलते हैं। पट्टी सेमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पट्टी सेमा, कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सेमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ये पहला वो था, मतलब रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पट्टी सेमा। लोकेशन आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी और कृष्णा को मिलाने के लिए। इनॉग्रेशन सितंबर 2015। सिग्निफिकेंस, इट डाइवर्स 120 TMC 1000 million cubic feet of water from Pollavaram project right main canal supplies water to Krishna delta during drought। कृष्णा गोदावरी, गोदावरी से किसमें, कृष्णा डेल्टा में जाता है। पट्टी सेमा Krishna Krishna Kaveri linking is a part of national river linking project but not related to Pattisema। Pattisema गोदावरी और कृष्णा रिवर से रिलेटेड है। गोदावरी एंड महानदी लिंक इज प्रपोज टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। कृष्णा और कावेरी। गंगा ब्रह्मपुत्र नो मेजर, ये इसमें कोई मेजर वो नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें देखा, घट प्रभा कैनाल कर्नाटक में, ठीक, उकई कैनाल गुजरात में, नीरा कैनाल महाराष्ट्र में, जवई प्रोजेक्ट तमिलनाडु में ना होके राजस्थान में। जवई प्रोजेक्ट इज ऑन द जवई रिवर, ए ट्राइब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर इन राजस्थान। तो जवई रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है, लूनी रिवर की। और लूनी रिवर कहाँ है, मतलब ये राजस्थान से निकलता है, फिर यहाँ मतलब गुजरात में आके रन ऑफ कच्छ में वो मर्ज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, समुद्र तक नहीं जा पाता है। ठीक, तो इसी का एक जवई रिवर क्या है, ट्राइब्यूटरी है राजस्थान में, वहाँ। घट प्रभा कनाल कर्नाटका, किसका, कृष्णा रिवर की, मतलब वो है पार्ट ऑफ द अपर कृष्णा इरिगेशन प्रोजेक्ट। अपर कृष्णा इरिगेशन प्रोजेक्ट का वो है घट प्रभा कनाल कर्नाटका में। उकाई कैनाल बिल्ट ऑन ताप्ती रिवर टू प्रोवाइड इरिगेशन। उकाई कैनाल इज द लार्जेस्ट रिजर्वेयर इन गुजरात। तो ताप्ती रिवर जो है गुजरात में, नर्मदा ताप्ती, ताप्ती रिवर पे ही उकाई कैनाल है। ठीक, नीरा कैनाल महाराष्ट्र एसोसिएटेड विद नीरा रिवर, ए ट्राइब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर। भीमा रिवर से कृष्णा हाँ, मतलब कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है, हाँ भीमा रिवर। और वहीं पे क्या है, नीरा कैनाल है। ठीक, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया इज पॉन्ड, सही है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन पेनिनसुलर रीजन आर सीजनल, सही है। पेनिनसुलर इंडिया हैज ए रॉकी टेरेन मेकिंग कैनाल कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट। Most rivers are seasonal and dry up in summer, limiting surface water availability. Hence, ponds and tanks serve as a primary irrigation source, especially in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka. State with maximum tank irrigation: Tamil Nadu. Traditional water harvesting system: तमिल नाडु में एरिस टैंक सिस्टम, राजस्थान में जोहाद, और मध्य प्रदेश में बावलिस। तो तमिलनाडु में इसको टैंक सिस्टम को क्या कहते हैं, एरिस, राजस्थान में जोहाज, और मध्य प्रदेश में बावलिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अबाउट 1/3 of the area of the country records more than 750 mm of annual rainfall। About 1/3
about 1/3 of the area of country records more than, हाँ हाँ ये सही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट हो गया अपना, नॉर्थ ईस्टर्न घाट हो गया, कुछ पार्ट जो हैं इधर छोटा नागपुर प्लेटू के और इधर थार डेजर्ट के, यही जो है कम मिलता है इन्हीं को पानी। द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन कंट्री इज वेल्स, वेल्स नहीं है, सबसे पहले तो ट्यूबवेल्स है, फिर कनाल है, फिर वेल्स है। एलुवियल सॉइल इज प्री डोमिनेंट इन नॉर्थर्न प्लेन, सही है। द माउंटेन एरियाज अकाउंट अबाउट 30% ऑफ सरफेस एरिया, हाँ माउंटेन एरिया वेस्टर्न घाट भी हो गया, कहीं कहीं ईस्टर्न घाट भी हो गया, अरावली हो गई। According to the 2018-19 data, tube well and wells 63.94, canal 22.96, tanks 2.13. Tube well, not traditional wells, are dominant irrigation method. ठीक है। In which state the percentage of total cropped area under irrigation is highest, मतलब परसेंटेज एरिया की पूछ रहा है, तो हरियाणा में। एरिया वाइज अगर परसेंटेज देखा जाए, मतलब एरिया वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज पूछ रहा है, तो हरियाणा छोटा राज्य है, तो उसका लगभग 96.91% जो है वहाँ इरिगेशन होता है। हरियाणा लीड्स ड्यू टू इंटेंसिव कैनाल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन। पंजाब रैंक सेकेंड 99.6%। अच्छा, मतलब पहले पंजाब है। चंडीगढ़ है 100% इरिगेशन कवरेज, बट इट इज़ यूनियन टेरिटरी, यानी कि पहले पंजाब है फिर हरियाणा है अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए। स्टेट द लार्जेस्ट इरिगेटेड एक्सटेंट, विच स्टेट इंडिया हैज लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन परसेंट? पंजाब। पंजाब हैज हाईएस्ट इरिगेशन कवरेज 99.6% इन 2015 to 2016। मेन सोर्स क्या है? कैनाल इरिगेशन, इंदिरा गांधी कैनाल, भाखड़ा कैनाल, ट्यूबवेल ड्यू टू एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मिंग, उत्तर प्रदेश, मतलब हरियाणा सेकेंड है, फिर उत्तर प्रदेश हटा 83.17%। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पत्तीसेमा ILR, पत्तीसेमा किसको किसको मिलाता है? गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी का पानी कृष्णा में। और क्रूशियल फॉर वाटर सस्टेनेबिलिटी, पेनिनसुलर इंडिया रिलाइज ऑन पॉन्ड इरिगेशन ड्यू टू सीजनल रिवर। हरियाणा पंजाब है हाईएस्ट इरिगेटेड क्रॉप एरिया ड्यू टू ट्यूबवेल एंड कैनाल्स। Irrigation patterns vary across India, influenced by climate, soil and topography. ठीक। With reference to the micro irrigation, देखिए माइक्रो इरिगेशन लेस देन 2000 हेक्टेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राईलैंड एरिया फार्मिंग, बिल्कुल गलत है। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड, बिल्कुल सही है। माइक्रो इरिगेशन इंक्लूड्स ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक। ड्रिप इरिगेशन डिलीवर्स water directly to the roots, reducing fertilizers and nutrients loss। ठीक। ड्रिप इरिगेशन से डायरेक्ट रूट्स तक पानी पहुंचा दिया जाता है। माइक्रो इरिगेशन इज हाईली efficient but not the only irrigation method in Thailand. Other methods like tank irrigation and canal irrigation are also used. Controlled water supply prevents overuse and checks groundwater depletion. State leading in micro irrigation Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu. गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर ड्रॉप मोर क्रॉप 2015 में शुरू किया गया था, तब से PMKSY 2015। लाइफ सेविंग और प्रोटेक्टिव इरिगेशन रिफर टू PWP इरिगेशन। ये क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? द मॉइस्चर लेवल बिलो विच प्लांट कैन नो लॉन्गर रिकवर, मतलब एकदम ऐसा पोजीशन कि अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, द मॉइस्चर लेवल बिलो विच प्लांट्स कैन नो लॉन्गर रिकवर। प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रिवेंट क्रॉप फेलियर इन ड्राफ्ट कंडीशन। प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रिवेंट्स क्रॉप फेलियर इन ड्राफ्ट कंडीशन। लाइफ सेविंग और प्रोटेक्टिव इरिगेशन रिफर टू
permanent wilting point irrigation. Constant flow of water. Protective irrigation is intermittent, not constant. Irrigation at critical growth stage. Protective irrigation is not limited to one growth stage but is used whenever plant reaching to wilting point. Wilting. Alternate wetting and drying. This method is used in paddy irrigation for water conservation but is different from protective irrigation. Protective irrigation is essential in dry lands of Rajasthan, Gujarat and Karnataka. Drought-prone areas program 1973 to 74 promotes protective irrigation. During the last 25 years, the development of tube-well irrigation has been most spectacular in Saryu Par Plain. Saryu Par Plain, eastern Uttar Pradesh, has been rapid tube-well expansion due to limited canal networks. तो यहाँ ट्यूबवेल एक्सपेंशन है सरयू पार ओके प्लेन. ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इज हाई मेकिंग ट्यूबवेल इरिगेशन वायबल. अच्छा, इसी वजह से ईस्टर्न में मतलब इतना वो हुआ. गंगा घाघरा दोआब हैज एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन डेवलपमेंट. गंगा यमुना दोआब डेवलप्ड ट्यूबवेल नेटवर्क बट सरयू पार प्लेन saw higher growth. Bundelkhand hard rocky terrain restrict groundwater recharge, limiting tube-well irrigation. Eastern UP and Western Bihar are among the highest tube-well irrigated regions. Uttar Pradesh alone contributes 74.9% of India's tube-well irrigation. State with maximum tube-well irrigation. In which state of India the maximum area is irrigated by tube wells? तो उत्तर प्रदेश. एरिया की बात आती है तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही होगा. उत्तर प्रदेश 74.9% of its irrigated area relies on tube wells. High groundwater availability and fertile alluvial soil support extensive tube well use. Canal irrigation dominates in MP. बिहार दो ट्यूबवेल इरिगेशन इज कॉमन. उत्तर प्रदेश एक्सीड बिहार. राजस्थान लो ग्राउंड वाटर लेवल्स में ट्यूबवेल इरिगेशन डिफिकल्ट. ठीक, तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी अगले पार्ट में देखते हैं. बाय बाय.